الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کا نام لے کے سورۃ الاعراف سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے 24 رکوع ہیں اور 206 آیتیں ہیں۔ ہجوم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی صورت ہے، اگرچہ کہ آگے ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ شورى، تو اس کی جو ہے آیتیں زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ ہجوم اس کا تھوڑا ہے۔ وہ آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ آیتیں بڑی ہیں، تو مجموعی طور پر یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ جیسے مدنی قرآن میں سورہ بقرہ سب سے بڑی ہے، تو مکی قرآن میں سورہ اعراف سب سے بڑی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسے سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات گنائے گئے اور اللہ کی شانیں اور قدرتیں وہ سامنے رکھی گئی، اللہ کا ایک تعارف، اس کی قدرت کمال کا تعارف کرایا گیا۔ جبکہ سورہ اعراف اس کے بالکل برعکس ہے، اس میں ایک آدھ رکوع اس رنگ کا مل جائے گا جیسے سورہ انعام کا رنگ تھا، لیکن یہ کہ باقی یہ واقعات کی صورت ہے۔ اگر ہم تاریخ انسانی کو دیکھیں، جیسے دنیا میں تو ہم بس اتنا ہی دیکھتے ہیں جو ہماری دور ہے، اپنے دور کو دیکھتے ہیں، یا یہ کہ آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ ہماری پہنچ وہاں تک ہے۔ سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم، تو ایک ابتدا ہے وہ اس سے پہلے کی ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں وہ ابتدا بھی بتائی گئی۔ اور ابتدائی جو حصے ہیں قرآن، بلکہ یہ پہلا رکوع تو ایک یوں سمجھیے سب کا ایک خلاصہ ہے، ابتدائیہ ہے، لیکن دوسرے رکوع سے وہ شروع ہو گیا کہ ابتدا کیسے ہوئی اور کیا کیا واقعات پیش آئے، اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ان واقعات کا ذکر ہے جو اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے پڑھے۔ پھر اس کے بعد آگے واقعات پیش کیا آنے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا اور دوزخ جنت کا فیصلہ کیسے ہوگا، وہ پوری تفصیلات جو ہیں وہ ان پہلے 6 رکوع میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ 7ویں رکوع کا رنگ جو ہے وہ اسی طرح جیسے سورہ انعام کا رنگ تھا وہ رنگ ہے، اور پھر 8ویں رکوع سے انباء الرسل، انباء الرسل مطلب رسولوں کی خبریں۔ ایک ہے قصص النبیین، جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے تو یہ قصص النبیین ہے، لیکن ایک ہے جو رسول آئے کسی بستی کی طرف، قوم نے مانا بچت ہو گئی، نہیں مانا ہلاک کر دیے گئے، تو وہ رسول جو کسی بستی کی طرف بھیجے گئے اور ان کی قوموں کو نہ ماننے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا، وہ ہے انباء الرسل کا مضمون۔ تو یہاں پہ جن رسولوں کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ باقیوں کا ذکر تو یہاں ایک رکوع میں آیا ہے، اور پھر 1.5 رکوع میں تقریباً تمام ان رسولوں کا ذکر کر دیا گیا جن کا نام لے کر قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ دنیا میں جس کونے میں بھی رسول آئے مجموعی طور پر کیا رویہ رہا قوموں کا۔ اس کے بعد پھر تقریباً 10 رکوع وہ ہیں کہ جن میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور پھر ان کے وہ واقعات جو ہم نے ہمارے بعض جگہوں پہ اشارتاً آئے ہیں وہاں تفصیل سے آئے، جیسے اس سے پہلے اصحاب سبت کا واقعہ 2 دفعہ اشارتاً اس کا ذکر ہو چکا، بس اصحاب السبت کی حد تک ہو چکا، یہاں اس کی تفصیل آئی ہے۔ سامری کا واقعہ آیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اس نے کیسے بچڑا بنایا۔ پھر اسی طرح ان کا ایک بہت بڑا شخص تھا، وہ بھی روحانی پیشوا تھا، اور وہ بلعم بن بعورہ، بہت بڑا ان کا عالم اور بڑا جو ہے نا صوفی بزرگ، لیکن یہ کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوا، یہ تمام جو ہے نا واقعات بیان ہوئے۔ اور ساتھ ہی قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے ایک رہتی جو کڑی ہے کہ جب تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے ان سے پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس عہد کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ تو یہ اس اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ ساری کی ساری صورت جو ہے وہ واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، قرآن ہے تو تذکرہ، تذکیر، ذکرہ، تو فرمایا کہ یہ جو اس انداز میں تذکیر ہوتی ہے اس کا انہوں نے ایک عنوان دیا، التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے نصیحت کرنا۔ تو گویا یہ اللہ کے دن ہیں بڑے بڑے۔ اب آپ سوچیے جس دن انسانیت کا آغاز ہوا تو بڑا دن ہے، تاریخی دن ہے، جب پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی نوع انسانی کی بڑی تعداد جو ہے وہ مقتول ہو گئی، ہلاک ہو گئی، برباد کر دی گئی، بستیاں ویران کر دی گئی، تہذیب الٹ دی گئی، تو وہ بھی بڑا واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ تو یہ اللہ کے بڑے بڑے دن ہیں جن کا کہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ تو سب سے بڑا دن وہ ہوگا جب ساری نوع انسانی اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ تو یہ اس اعتبار سے تاریخی واقعات پر مبنی جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہے۔ بس آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات یہاں پہ 4 آ گئے۔ الف لام میم پہلے بھی آئے ہیں، صاد جو ہے یہ اضافی یہاں پہ آیا، 4 ہو گئے، ویسے 5 بھی ہیں، اور اس پہ آیت بھی ختم ہو گئی۔ اور مقطعات اصل میں انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ملا کے نہیں پڑھتے، الف لام میم ہے تو اسے توڑ کے پڑھیں گے، علم نہیں پڑھ لیں گے، تو اس لیے انہیں وہ علیحدہ علیحدہ کیے ہوئے حروف۔ کتاب انزل الیک ہے، کتاب ہے جو اتاری گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس سے آپ کے اس کو آگے پہنچانے سے آپ تنگ نہ ہوں۔ اصل میں یہ تنگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پہنچانے میں کوفت ہوتی ہے، یا یہ کہ جیسے کسی کی طبیعت میں سستی طاری ہوتی ہے تو کام کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آگے سے لوگوں کا جواب مایوس کرتا ہے۔ آپ ایک معقول بات کرتے ہیں، لوگ آگے سے ٹیڑھی باتیں کرتے ہیں، تو اس سے انسان کا جو ہے نا وہ ہمت ٹوٹتی ہے۔ تو آپ اس سے اپنی ہمت نہ توڑیں، آس نہ توڑیں۔ یہ تو ہمارا اصل میں آپ پر اتاری اس لیے ہے، ان کا ماننا لازمی نہیں ہے، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں، وارن کر دیں، سمجھا دیں، وذکریٰ للمؤمنین، تو جو نہیں مانتے ان کو وارننگ ہو جائے، اور جو مان رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، وہ اس سے نصیحت پکڑ کر اپنے معاملات کو سدھار لیں گے۔
इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम, ऐ लोगों जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, और उस रब को छोड़कर और इस किताब को छोड़कर किसी जो तुमने दोस्त बनाए हुए हैं उनकी पैरवी न करो, उनके पीछे न चलो। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत थोड़ा है जो तुम्हें समझ आता है, थोड़ा समझते हो। व कम मिन क़रियतिन, अब ये एक मजमूई अंदाज में बात की जा रही है यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा था ये एक इब्तिदाई है, इब्तिदाई जो है ना जैसे पैराग्राफ होता है। व कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा, कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया, इसकी तफसील आगे आ जाएगी। फजाअहा बासुना बयातन औ हुम काइलून, तो उन पर हमारा अजाब आया रात को, या ये कि वो जब कलूला कर रहे थे दिन के वक्त, उस वक्त उन पर अजाब आ गया। फमा कान दावाहुम इज़ जाअहुम बासुना, तो जब उन पर हमारा अजाब आया तो उनकी चीखो पुकार नहीं थी, उनका चिल्लाना नहीं था, इल्ला अन कालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, मगर यही था कि हम जालिम थे। आज तो अपने आप को बताते हैं कि हम जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं, बड़ा दानिशवर कोई नहीं, इंटेलेक्चुअल कोई नहीं, लेकिन जब अल्लाह का अजाब सामने आता है तो सब हवा हो जाता है, और उस वक्त उन्हें नजर आता है कि हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, हम जालिम थे, हमने अल्लाह की रसूल की बात नहीं मानी, हम गलत थे। ये तो दुनिया में हुआ। अब अगली बात यह है कि फलन नसअलन्ना लज़ीना उरसिला इलैहिम, हम जरूर पूछेंगे उन लोगों की तरह, उन लोगों को जिनकी तरह रसूल भेजे गए। अब ये देखिए, ये वो शहादत वाली बात है जो सूरह बकरा में हमने पढ़ी थी कि रसूल गवाह बनेंगे, तो रसूलों ने पहुंचा दिया तो लोगों से पूछा जाएगा, जिनकी तरफ रसूल आए उनसे पूछा जाएगा। वला नसअलन्नल मुरसलीन, रसूलों से भी पूछेंगे, रसूलों से, लोगों से ये पूछेंगे हाँ जी उन्होंने पहुंचाया था, और अगर वो कहे नहीं तो फिर रसूलों से पूछेंगे। और एक पूछना हमने पीछे देख लिया सूरह माइदा में, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि तुम्हारी कौम इस गुमराही में पड़ी तो तुमने ये सिखाया था इनको, ये तुम्हारी तुमने तालीम थी, तो ये हम रसूलों से भी पूछेंगे कि पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। फला नकुसन्ना अलैहिम बिइल्मिन, तो ये भी तो असल में अदालती कार्रवाई के लिए होगा, जैसे अदालत एक लगती है तो उसके अंदर उसका प्रोसीजर पूरा किया जाता है। बाकी जहां तक मसला है फिर उन्हें हम सुनाएंगे अपने इल्म की बुनियाद पर। ये कोई एजेंसियों वालों की रिपोर्टें नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी उन्होंने लिख ली और उसी में खामखा बंदा चुका गया। ये हम जो है ना अपने इल्म की बुनियाद पर उनसे उन्हें बताएंगे। वमा कुन्ना गायबीन, और हम कहीं गैब तो थे नहीं, सब कुछ हम खुद गवाह हैं, अल्लाह से बड़ा गवाह कौन है तो हमें पता है। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, और उस दिन वजन हक में होगा या वजन ही हक होगा, यानी ये दोनों माने मुमकिन है, मफहूम में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वजन ही हक होगा मतलब ये है कि और कोई शय हक नहीं है, जिसके पास कोई वजन होगा वही हक है, और जो हक है उसमें वजन होगा, यानी ये कि आपने कोई नाहक काम किया है तो खोखला है, उसमें कोई वजन नहीं है। वल बाकियातुस सालिहात, कोई नेकियां हैं जो की हैं तो वो बाकी रहेंगी, उनमें वजन होगा, बाकी सारी मेहनतें खोखली साबित होंगी, उनका कोई वजन ही नहीं होगा। फमन सकुलत मवाज़िनुहु, तो जिसके वजन भारी निकले। अब ये देखिए, ये नहीं वो जो एक हमारा मीज़ान का तस्वुर है, अल्लाह मीज़ान नस्ब करेगा तो एक तरफ बुराइयां होंगी, ये होगा, तो असल में मसला ये है, बुनियादी बात यह है कि हर आदमी के अंदर आप अल्लाह ने नेकी का एक पोटेंशियल रखा है, उस पोटेंशियल के मसावी उसने काम किया है, यानी भारी हो गया उसके, ठीक है, कामयाब हो गया। फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो वो कामयाब होने वालों में से होंगे, निजात पा जाएंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़िनुहु, जिसके हल्के निकले, यानी जो उसका स्टैंडर्ड होगा उससे कम निकले, फौलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला। ये जो पीछे सूरह नाम में हम पढ़ा है कल, अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, तो वो कौन है? वो ये हैं जो जिन्होंने खसारे में डाला, बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, इसलिए कि वो हमारी आयत को झुटलाते थे, इनकार कर, उनके साथ जुल्म करते थे। आयत के साथ जुल्म सबसे बड़ा ये है कि उनको माना ना जाए। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द, और हमने तुम्हें ज़मीन में तमक्कुन दिया, जमाओ दिया, यहाँ पे तुम्हें ठहराया। वजअलना लकुम फ़ीहा माइश, और यहाँ तुम्हारा रोजगार रखा, तमाम जिंदगी गुजारने का सामान यहाँ तुम्हें हमने फराहम कर दिया, ऑक्सीजन भी देगी, नबातात, हर चीज़ तुम्हें वाफिर दे दी। कलीलन मा तशकुरून, उसके बदले में बहुत थोड़ा है जो तुम शुक्र करते हो। अब ये पहले रुकू में पूरी सूरत का एक यूँ समझिए कि खुलासा हमारे सामने रख दिया। अब इसके बाद वो जो पहले वाक़यात हो चुके हैं उनका तज़किरा शुरू हो रहा है, और ये यहाँ पर एक बड़ी अजीब शान है, इसलिए कि आम तस्वुर यही है कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और आदम को सजदा करने के लिए कहा गया, बाकी लोग सारी दुनिया में बाद में आए, जबकि यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, जमा मुखातिब की ज़मीर आ रही है। फरमाया वलक़द खलक़नाकुम, हमने तुमको पैदा किया, जमा इंसानों की बात हो रही है। सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हारी तस्वीर कशी की। सुम्मा कुलना लिल मलाइका, उसके बाद हमने फरिश्तों से कहा उसजुदू लि आदम, सजदा करो आदम को। अब ज़्यादा तफसील में जाने की बात नहीं है, लेकिन हम सूरह आल इमरान में एक आयत पढ़ा है, इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम, बेशक अल्लाह ने आदम को चुना, वनूह आला इब्राहीम वाला इमरान आलमीन, तो जैसे अल्लाह ने नूह को चुना तो कुछ लोगों में से चुना, जैसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुना तो कुछ लोगों में से चुना, तो वही लफ्ज़ आया इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम। तो अगर कुछ लोग थे और उनमें से एक आदम को चुनकर फिर उनमें अपनी रूह फूंकी गई तो उसका भी पूरा इम्कान है। सुम्मा कुल्ना लिल मलाइका, अच्छा ये वो रूह फिर आप गड़बड़ा जाएंगे, रूह अलग है, जान अलग है, जान तमाम हवानात में भी है, रूह सिर्फ इंसान में है, बाकी हवानात में रूह नहीं है। सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि सजदा करो आदम को। फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के, वो फरिश्ता नहीं था, जिन था, और लेकिन ये कि कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों की सफ में शामिल कर दिया गया था। तो जब फरिश्तों को हुक्म हुआ तो उसको भी साथ हुक्म दिया गया। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। काला मा मना का अल्लाह तस्जुद इज़ अमरतुक, अल्लाह ने फरमाया कि तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। अब देखिए इससे ज़्यादा कोई इबादत क्या कर सकेगा कि वो फरिश्तों की सफ में शामिल हो गया जिन्होंने की वजह से बावजूद। इसलिए कि इंसान का फरिश्तों की सफ में शामिल होना जिन की निस्बत आसान है, क्योंकि जिन ज़्यादा शरीर मखलूक है और उसके अंदर शर का मादा ज़्यादा है, फिर आग से बना हुआ है, उसके अंदर एक्टिविज्म भी ज़्यादा है, आग की वजह से वो ज़्यादा एक्टिव शय है। मिट्टी तो उसके मुकाबले में बहुत ही पैसिव सी चीज़ है, लिहाजा वो इसके अंदर इतना एक्टिविज्म नहीं है जितना कि जिन के अंदर है। तो वो अगर फरिश्तों की सफ में शामिल हो गया तो कितनी मेहनत की होगी उसने, और उसके बाद भी रांदा दरगाह हो गया। तो किसी की इबादत जो है वो कब जो है ना वो उल्टा उसके गले में पड़ जाए कोई पता नहीं होता।
काला अना खैरुम मिन्हु, तो उसके जवाब में उसने कहा कि मैं इस आदम से बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नार, बेहतर की वजह क्या है, बहुत फिजिकल यानी मादी वजह है उसकी, कि मुझे तूने बनाया है आग से, व खलकतहु मिन तीन, और इसको तूने बनाया है मिट्टी से। अब जाहिर है मिट्टी के मुकाबले में आग एक बेहतर चीज़ है। दलील की हद तक अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आग एक लतीफ़ मादा है और मिट्टी जो है ना उसके मुकाबले में कसीफ है, तो इस वजह से मैं आला हूँ, ये घटिया है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि एक आला चीज़ जो है वो किसी घटिया को सजदा करे, इसलिए नहीं किया। काला फ़हबित मिन्हा, अल्लाह ने फरमाया तू यहाँ से निकल जा रहा, बस ये अब से तू मलून हो गया। फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा, ये तेरे लिए ठीक नहीं है या जायज़ नहीं, तेरे शान शान या मकाम के मुताबिक नहीं था कि तू यहाँ पे तकब्बुर करता, घमंड करता और इस तरह के इस्तिकबार में मुब्तला होता। फ़खरुज, तो निकल जा यहाँ से, इन्नका मिनस सागिरीन, तो हो गया है सगीर छोटू में से, तो ये मकाम मर्तबा तुम्हारा खत्म। वो जैसे होता है ना कि जी वो यूनिफॉर्म उतार लो और जो है ना वो आप माजूल हो गए हो, जो स्टार वगैरह है वो उतार लिए तो खत्म, तुम्हारी कहानी ज़लील होकर निकल जाओ। काला अंज़िरनी इला यौम युबअसून, उसने कहा कि मेरे रब मुझे मोहलत दे उस दिन तक के लिए कि जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे, यानी कब्रों से निकाल हशर के मैदान तक मुझे मोहलत दे। काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने फरमाया तू है उनमें से जिन्हें ढील दी गई, यानी मोहलत है। काला फबिमा अग़वैतनी, तो उसने कहा कि अब इसे यूं भी आप कह सकते हैं कि जैसा कि तूने मुझे, यानी ये नहीं कहा कि मैं गुमराह हूँ, अल्लाह से कहा तूने मुझे गुमराह किया है। ये अगर तू ये आदम को सजदा करने का हुक्म ना देता तो मुझे मैं ठीक था, असल में तो ये तूने चूंकि हुक्म दिया तो एक मुझे आजमाइश में डाल दिया, तो इस वजह से मैं गुमराह हो गया। तो जो तूने मुझे जिस वजह जैसा कि तूने मुझे गुमराह किया, यानी उसके रिएक्शन में एक यूं माना होगा, और एक माना और भी हो सकता है कि बिमा अग़वैतनी, जिस सबब से तूने मुझे, यानी जिसकी वजह से, यानी जिसको जो है तेरा लाडला और इसकी वजह से तूने मेरे साथ ये मामला किया है, तो लाअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, इनके लिए घात लगा के मैं बैठूंगा तेरी सीधी राह पर। सबसे पहले ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। हमारा आमतौर पे गमान ये होता है कि शैतान किसी गुमराह जगह पे, बदी की जगह पे होगा, वहां तो खुद शैतान के कान कतरने वाले मौजूद होते हैं, उसे उधर जो है ना जाके तो ज़हमत करने की क्या जरूरत है। वो सिरात मुस्तकीम पर कहता है मैं बैठूंगा। उसका खुद अपना दावा यह है कि मैं सिरात मुस्तकीम पर हूंगा। यानी सिरात मुस्तकीम पर कौन लोग चलते हैं, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो शिकार तो उनको करना है जो पहले ही से गुमराह हैं, उनके पीछे टाइम ज़ाया करना, तहसील हासिल हम कहते हैं, जो चीज़ हासिल है उसे दोबारा हासिल करने का क्या फ़ायदा। तो लिहाजा वो उधर मैं नहीं मेहनत करने वाला, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, फिर मैं इन पर हमला आवर हूंगा, यानी घात लगा के बैठा हूं तो फिर अब मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा और चारों जिहतों से करूंगा, हर जिहत से आऊंगा, इनके आगे से भी आऊंगा, इनके पीछे से भी आऊंगा, इनके दाएं से भी आऊंगा, इनके बाएं से भी आऊंगा। और इसको अगर आप मानवियत देना चाहें तो ये भी आगे से आऊंगा, यानी खुल के आऊंगा, चीज़ों को मुज़य्यन करके डेकोरेट, जो ज़ुख़रुफ़ल कौल की मदद से आऊंगा। पीछे से आने का मतलब है साजिश करके, कोई चाल चल के, कोई वसवसा करके, छुप के जो वार करना है वो भी करूंगा। दाएं से आने का मतलब नेकियों के रास्ते भी गुमराह करूंगा। आगे देखेंगे आदम अलैहिस्सलाम के साथ उसने क्या किया, नेकी के चक्कर में भी डाल के गुमराह करूंगा, जैसे कि ईसाइयों को रहबानियत का चक्कर दिया। बाएं तरफ से आऊंगा कि वो जो भी बुराइयों में मुलव्वस करूंगा उनको अट्रैक्टिव बना के इनके सामने पेश करूंगा, हर तरफ से आऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनकी अक्सरियत को जो शुक्रगुजार नहीं पाएगा, तू समझता है कि ये तेरे बंदे बनेंगे, मैं नहीं बनने दूंगा। काला खरुज मिनहा मज़ऊमम मदखूरा, अल्लाह ने फरमाया निकल यहाँ से बुरे हाल, जलील होकर और धक्के खाकर। लमन तबिअका मिनहुम, इनमें से जो तेरा ताबेदार होगा, तेरी पैरवी करेगा, तेरे ये खूबसूरत बातों में आएगा, लच्छेदार बातों का कैदी बनेगा। लअमलाअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमाइन, तुम सबसे मैं दोज़ख को भर दूंगा। वह या आदम, अब देखिए ये कितनी तफसील है इसमें। वो सूरह बकरा में तो इस तरह बयान हुआ जैसे एक ही दिन सारे वाक़यात हो गए, यहाँ आके आपको पता लगेगा कि नहीं ये तो मरले हैं, एक मरले में ये हुआ, दूसरे मरले में ये हुआ। वह या आदम हो, अब अल्लाह ताला ने कहा आदम उसको नंत वज़ौजुकल जन्नह, तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में, जो भी ये आजमाइशी जन्नत है, इसमें सुकूनत इख्तियार करो। फकुला मिन हैसु शिअ्तुमा, जहाँ से चाहो खाओ, जो चाहो जहाँ से चाहो खाओ। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, इस दरख्त के करीब नहीं आना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इसके करीब आए तो तुम हो जाओगे जालिम। देखिए खाने का नहीं कहा, करीब ना आना, इसका मतलब करीब आओगे तो खा लोगे। ये जो भी दरख्त है इसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, तो करीब नहीं आना, करीब आओगे तो गए, तो करीब नहीं आना है। फवस्वसा लहुम शैतान, तो शैतान ने, अब ये भी कुरान मजीद एक बात कह रहा है और किसी बात की नफी कर रहा है। जिस बात की नफी कर रहे हैं, अगर आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में ना मालूम हो तो आपको नहीं पता लगेगा कि किस चीज़ की नफी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये मशहूर किया कि असल में ये जो भी औरत है ये बुराई की जड़ है। क्यों कि शैतान ने अम्मा हवा को गुमराह किया था और फिर उन्होंने आदम को जो है ना अपने जैसे भी किसी न किसी तरीके से वर्गला कर तो वो दरख्त खाने पर आमादा कर लिया था। कुरान मजीद ने या तो कहा कि उसने आदम को वसवसा किया, और जब कहा तो दोनों का, या दोनों का कहा या आदम का, अकलौता कहा तो आदम का कहा, और अम्मा हवा का तो कोई जिक्र ही नहीं किया, उनको अकेले में किया हो। फवस्वसा लहुमा, उन दोनों को उसने बहकाया, शैतान ने, लियुब्दिया लहुमा मा वूरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा, ताकि वो उन पर खोल दे जो कुछ छुपा दिया गया है उन पर उनकी शर्मगाहों में से। अब अगर सादा अंदाज में देखें तो इसका मतलब क्या होगा कि जो शर्मगाहें कपड़ों के सतर के अंदर हैं वो खुल जाएं, सतर खुल गया और वो नजर आने लग गई। और एक मतलब तो ये भी हो सकता है एक बच्चा है, उसे क्या मालूम, शर्मगाह को देखे भी तो क्या मालूम कि क्या चीज़ है, लेकिन जब वो भी बड़ा हो जाता है तो उसे उसका फंक्शन समझ में आ जाता है। तो वो पहले फंक्शन उस पर छुपा हुआ था, उस पर अयान नहीं था। तो ये भी मुमकिन है कि उस दरख्त के करीब जाने का नतीजा ये निकला हो कि वो जो भी एक शर्म हया वाला मामला है वो अया हो गया हो उनको, यानी जिस तरह एक सेक्स की आदत होती है, कोई इस तरह की सूरत बन गई हो। वकाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरा, और उसने उन दोनों से कहा तुमको तुम्हारे रब ने इस दरख्त से नहीं रोका, इल्ला अन तकूना मलकैन, मगर इसलिए कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ।
उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह की नाफरमानी करो बहुत अच्छी बात है, उसने ये कहा फरिश्ते बन जाओ, नेक हो जाओगे, गोया इंसान नेकी की तरफ, वो जो उसने कहा ना दाएं से आऊंगा तो दाएं से आया, उसने कहा फरिश्ते बनोगे। और तकूना मिनल खालिदीन, या हमेशा हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। ये भी इंसान का एक वो भी जो उजलत पसंदी है, तो दायमी जिंदगी उसे चाहिए, जितना ज्यादा उम्र होगी। नेक आदमी भी कई ऐसे लोगों का होता है ना कि जितनी उम्र होगी तो इतनी ज्यादा नेक अमाल होंगे, तो वो एक चीज उसके साथ भी जुड़ी होती है। वह कासमहुमा, सिर्फ इतनी बात नहीं, उसने कसमें खाई, इन्नी लकुमा लमिनन नासिखीन, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और मैं तुम्हारा हमायती हूँ। अब यहाँ बस इतनी बात नोट करें कि जो फिल्मों में हमें शैतान दिखाया जाता है, जिस तरह की उसकी शक्ल सूरत होती है, वो उससे कोई मुतासिर होगा इस तरह की बातों से? तो शैतान एक अच्छी मतलब मनमोहनी सूरत में आता है, एक मासूम सी सूरत बना के आता है, जिसे देखकर उसकी बात मानने को खामखा दिल करता है। वो बदसूरत बन के नहीं आता, ड्राउनी शक्ल में नहीं आता, खैर खा बन के आता है, नासे बन के आता है। और वैसे दुनिया में जितने भी फ्राडी हुए हैं ना, वो मासूम सूरत ही होते हैं, या मजहबी रूप में होंगे। देखें ये तो वाकया ही आपके सामने। अब कोई भी स्कैंडल हो, माली स्कैंडल हो, कुछ हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई या नेक बंदा होगा या कोई मासूम सूरत बंदा होगा। फद्दल्लाहुमा बिगुरूरिन, और उसने उनको दलाइल दिए। ये दल्ला का लफ्ज़ नोट करें, ये दलीलें देना। ये जो एक हमारे यहाँ दलाल होता है जिसे एजेंट कहते हैं, उसका क्या मतलब है? वो अपनी चीज़ की दलाइल दे के बेचता है, ये जी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, ये ले लें, ये उसी को जरा जब खास बाजार के साथ जोड़ा तो जरा मुख्तसर करके एक गाली सी बन गई, तो वो भी दलाली होता है ना, असल में तो वो दलाल है। तो उसने दलाली की, शैतान ने दलील दी, माइल किया उनको, लेकिन दलाल थे क्या? धोखे के। अब अगर आप सूरह नाम की वो आयत याद करें, ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा, बातें चिकनी चुपड़ी थी, अंदर फराट था, कसमें बहुत खैर खाना थी, बीच में धोखा था। ये है असल में वो सारा शैतान का तरीका वारदात, चिकने चुपड़े अल्फाज से, लच्छेदार बातों से शिकार करना, धोखा देना। फलम्मा ज़ाक़ा शजरा, जब दोनों ने वो दरख्त चख लिया, बदत लहुमा सौआतुहुमा, खुल गई उन पर उनकी शर्मगाहें, वत्तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, और अब वो दोनों जोड़ने लगे अपने ऊपर जो जन्नत के पत्ते थे उनसे, यानी ये कि अब उन्हें वो शर्म हया दामनगीर हुई और उन्होंने अपनी शर्मगाहें ढांपनी शुरू की। अब ये देखिए, शर्मिंदगी, नदामत, पशेमानी यूं ये तारी हुई। व नादाहुमा रब्बुहुमा, उनको पुकारा उनके रब ने, अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरा, क्या मैंने तुम्हें रोका नहीं था इस दरख्त से कि इसके करीब न जाना? व अकुल लकुमा, और मैंने तुमसे कहा नहीं था, इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, कि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब यहाँ दो बातें समझ लीजिए। पहली बात ये समझ लीजिए, इंसान को जब तक किसी बात का तजर्बा न हो, उसे उसका देखें, आपने धोखा खाया ही न हो तो आपको क्या मालूम धोखा क्या चीज़ होती है। धोखा खाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ वो यार लोग फ्रॉड भी करते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम इस तजर्बे से नहीं गुजरे थे, तो ये पहला अल्लाह ताला ने उनको मुजाहिरा करके दिखा दिया कि यूं करके धोखा देता है। मैंने बताया तो था, लेकिन तुम्हें अब तजर्बा भी हो गया ना, इस अमल से गुजर के समझ भी आ गई। और दूसरी बात ये नोट कीजिए कि शैतान को भी एक जो है ना इंसान की पूरी जानकारी नहीं थी। उसको तो अपने हिसाब का पता था कि जिधर एक दफ़ा मुड़ गया बंदा उधर ही चलता रहता है। वो बात मशहूर है ना कि किसी सिक्स एक्सीडेंट हो गया, किसी ने बाद में पूछा क्या हुआ, उन्होंने क्या भाई सड़क मुड़ गई थी तो आप सीधे गए। तो जिन्नात जो है वो सीधे जाते हैं, वो बस एक दफ़ा जिस पटरी पे चढ़ गए उस पर चलेंगे। उसको ये नहीं पता कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने क्या काबिलियत रखी है कि ये तौबा भी कर सकता है, ये अपने किए पे नादिम भी हो सकता है, शर्मिंदा भी हो। ये शैतान पर ये पहली दफा खुला, उससे पहले उसे इस चीज का पता नहीं था। काला रब्बना ज़लमना अनफुसना, दोनों ने कहा, मियां बीवी ने, हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, हमसे गलती हो गई, हमने सख्त गलत काम किया। व इन लम तगफिर लना, और तूने अगर हमें बख्श न दिया, व तरहमना, और तूने हम पर रहम न फरमाया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारा पाने वाले हो जाएंगे। ये उनके दिल के जज्बात थे, इन जज्बात के लिए उनके पास अपने अल्फाज नहीं थे, ये अल्फाज उन्हें अल्लाह ने अता किए। जैसे सूरह फातिहा अल्लाह ने अता की एक सलीमुल अकल सलीमुल फितरत इंसान के जज्बात के इज़हार के लिए, ऐसे ही एक शर्मिंदा इंसान के लिए अल्लाह ने ये अल्फाज अता किए। अब इसे जोड़िए, शैतान भी अल्फाज देता है, वो ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूर वाला, वो अपने दोस्तों की तरफ वही करता है। अल्लाह भी अपने दोस्तों की तरफ दिल में बात डालता है। उनको भी गैर से मज़ामीन ख्याल में आते हैं, ऐसी बात नहीं कि उनके ख्याल में मज़ामीन नहीं आते, लेकिन वो अच्छे मज़ामीन आते हैं। वो उस तरह के जो है ना वो फौज गोई और उस तरह के मज़ामीन नहीं आते, वो झूठ पर मबनी इफ्तरा नहीं आता, बल्कि अच्छी बातें आती हैं। काला बेतु बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, अल्लाह ने फरमाया आप एक दूसरे के दुश्मन होते हुए यहाँ से निकलो। शैतान और इंसान एक दूसरे के दुश्मन हैं ही, लेकिन दुनिया में इंसानों की आपस में भी दुश्मनी होंगी, औरत मर्द भी, उनके भी मसाइल होंगे। और ये कि फिर ये आगे जाएं तो ये दुनिया में जंगें होंगी, जंग अजीम होगी, जंग अजीम दोम होंगी, फिर उन दोनों से बड़ी कोई थर्ड वर्ल्ड वार की भी तैयारियां हैं। तो ये सारा कुछ होगा, तुम दुश्मन बन के जाओ। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन, और ज़मीन पर तुम्हारा ठिकाना है। व मताउन इला हीन, और एक वक्त तक के लिए वहीं सामान ज़ीस्त है, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। काला फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून, अल्लाह ने फरमाया इसी में तुम जिंदा रहोगे, इसी में तुम मरोगे और इसी से तुम दोबारा निकाले जाओगे। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम पर लिबास उतारा है। असल में अब मक्के में एक बेहयाई का काम ये होता था नेकी के रास्ते के तस्वुर में, कि जो लोग भी उम्रा करते हैं, हज करते हैं, तवाफ़ करते हैं, वो तवाफ़ सवाब का काम है, लेकिन अगर कपड़े उतार कर किया जाए तो ज़्यादा सवाब है, अफजल है, ज़्यादा नेकी का काम है, उसका दर्जा बुलंद हो जाएगा। अब ये बेहयाई का काम है, लेकिन वो करते थे। तो ये अल्लाह ताला ने ये पूरा वाक़या तमहीदन बता के ज़िम्नन उनकी उस बुराई, वैसे तो इसका पूरा जो है ना वो तारीख के साथ जोड़ के देखें तो मकसद उतारने इस बात कहने का बड़ा है, लेकिन साथ ज़िम्नन उसकी उस गुमराही का भी जिक्र कर दिया। क्या बनी आदम, और आज के दौर को भी ज़हन में रखें, उस दौर में नेकी के रास्ते वो काम किया गया था कि जी स्वाब ज़्यादा है उसका। हमारे यहाँ वैसे अब भी ये तस्वुर है, वो जो बंदा ना कपड़े पहने, ना नहाए, ना धोए, हम कहते हैं बहुत बड़ा बुजुर्ग पहुंचा हुआ है, तो वो ज़्यादा पहुंचे हुए होते हैं, नंग धड़ंग बादशाह। और इसी तरह अब एक नया तस्वुर आया है, वो जो मुल्हिद किस्म के लोग हैं, दरिया किस्म के लोग हैं, कि इंसान का फितरी लिबास जो है
तो ये खामखा तकल्लुफात करने की क्या जरूरत है। ये असल में सर्दी लगी थी ना आदमी को, तो जब सर्दी लगी तो उसने अपने सर्दी मिटाने के लिए कुछ अपने ऊपर ओढ़ा, आस्ता आस्ता उसकी आदत हो गई है, तो उतार के फेंको यार, ये क्या तकल्लुफ में पड़े हो। यानी आराम से वो हैं जो तकल्लुफ नहीं करते, ज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, आराम से वो हैं जो तकल्लुफ नहीं करते। तो ना कपड़े होंगे, ना दर्जी होंगे, ना ये खड़ियाँ होंगी, तो आराम से रहें, छोड़ेंगे कपड़े शपड़े पहनना। तो ये सारे तस्वुरात हकीकत कौन दे रहा है, पीछे से फीड कौन कर रहा है, वो बात अल्लाह ने समझाई। ऐ बनी आदम, हमने तुम पर लिबास उतारा, हमने तुम्हें दिया ये युवारी सौआतिकुम, ये तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता है। सौ वो शय जो बुरी लगे, यानी इसका कोई ये कोई नज़ारा करने की चीज़ नहीं है, ये तुम्हारा ऐब है, ये कोई तुम्हारा हुस्न नहीं है, ये कोई ब्यूटी नहीं है, ये कोई नगाहों के लिए दिलफरेब चीज़ नहीं है। और अगर ऐसा महसूस होता है तो कोई फितरत के अंदर जो है ना कोई खराबी आ गई है, तो ये तुम्हारे लिए ऐब है। उस ऐब को छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास उतारा है, वरीशा और आराइश के लिए ज़ेबाई। देखिए ये जो लिबासों के इतने डिज़ाइन बनते हैं, क्यों बनते हैं, तो कोई इसके अंदर तुम्हारी जो ना जीनत का आराइश का सामान रखा है, लिबास से तुम भले मालूम होते हो, अच्छे लगते हो। इसीलिए हम तो घोड़ों को भी कपड़े पहना देते हैं ना, जो जिस घोड़े के वो जरा कुछ टहल करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ चढ़ा देते हैं। वह लिबास तकवा, और जो तकवा का लिबास है, ज़ालिका खैर, वो सबसे बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से, लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ें। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह, शैतान तुम्हें कहीं उस तरह अगवा न कर ले जैसे कि उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकाल दिया था, कहीं तुम्हें भी नंग दड़ंग न कर ले नेकी के नाम पर और मॉडर्निज्म के नाम पर और नेचरलिज्म के नाम पर। यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, उनसे उनका लिबास उसने खींच लिया था, लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि उनको दिखा दे उनकी शर्मगाहें। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम, वो देखता है तुम्हें और उसका कबीला भी, उसकी बरादरी यानी जिन्नात, वहां से जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते, तुम्हारे बस में नहीं है उनको। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात हो सकते हैं, आमतौर पर तुम नहीं देख सकते उनको। तो जब नहीं देख सकते तो पर उनके मुकाबले में अल्लाह का तहफ़्फ़ुज़, एक मैंने आपको कल बताया था, पाक साफ रहना। और ये जो हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़कार बताए, जिन्हें सुबह शाम के अज़कार मसनूना जो हैं, ये भी इन्हीं शयातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ये नमाज रोज़े की जो हिफाजत इसी के लिए की गई, इन्हीं से बचने के लिए दी गई है। इन्ना जालना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, हमने बना दिया है इन शैतानों को दोस्त उन लोगों का जो ईमान नहीं रखते। मोमिन के दिल में इनके लिए गुंजाइश नहीं है, ये बेईमानों के दिल में घर करते हैं। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जब कोई बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं, कालू वजदना अलैहा आबाना, वो कहते हैं ये हमारे आबा की रवायत है, हम इस आबा तो हमारे बहुत सियाने थे, और सुकरात और अफलातून उनके आगे पानी भरते थे, लिहाजा उनकी रवायत को तो हम नहीं छोड़ सकते, वो उसको तो हम जारी व सारी रखेंगे। वल्लाहु अमरना बिहा, अल्लाह ने इसका हमें हुक्म दिया है, क्योंकि हमारे असलाफ तो अल्लाह के हुक्म से हटकर चलने वाले नहीं थे, लिहाजा अल्लाह ने हुक्म यही दिया है, कुल इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फ़हशा, इनको समझाइए अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता। इस तरह की जो है ना, ये कोई पहुंचा हुआ नहीं होता, ये गुमराह इंसान है कि जो नंगा फिरता है और गंदा फिरता है। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या तुम अल्लाह पर वो बातें जड़ते हो जो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह की शान नहीं है किस तरह का हुक्म दे। कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, फरमा दीजिए मेरा रब इंसाफ का हुक्म देता है। इस बेहयाई में बेइंसाफी की बात क्या है, ये एक सवाल है, ज़हन में रखें, क्योंकि उसके साथ जोड़ा है इसे। तो जहाँ बेहयाई होगी वहाँ औरत मजलूम होगी, बेशक उसे उल्लू बना के आज़ादी के नाम पर, शाना बशाना के नाम पर वो आसान, वो रीचेबल हो जाएगी। वो बगैर किसी महर के, बगैर किसी प्रोटेक्शन के, बगैर कोई जिम्मेदारी उठाए उसके साथ जो मेल जोल करेगा, अब बच्चा पैदा करेगी तो खुद संभालेगी, अब्बे का तो पता ही नहीं, मालूम ही नहीं कौन है, तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा, बोझ कौन उठाएगा, उसे उठाना पड़ेगा। तो जुल्म, ये ज्यादती, ये नाइंसाफी और बहुत सारे इसके पहलू हैं। लेकिन असल में ये समझ लीजिए कि जहाँ बेहयाई आम होगी और फ्री सेक्स सोसाइटी होगी, वहाँ पे मजलूम औरत होगी, अगर उसे ना समझ आए। वाक़ीमू वुजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन, और अपने चेहरे सीधे रखो हर नमाज के वक्त। वदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन, और अपनी इताअत को अल्लाह के लिए खालिस रखते हुए उसे पुकारो, दुआ उससे करो। कमा बदाकुम तऊदून, जैसे उसने तुम्हारी इब्तिदा की ऐसे लौटाएगा, दोबारा पैदा करेगा। फरीकन हदा, एक ग्रोह हदायत पर है, व फरीकन हक़्क़ अलैहिमुज़ ज़लाला, और दूसरे के ऊपर गुमराही साबित हो चुकी है। इन्नहुम इत्तख़ज़ुश शयातीन औलिया मिन दुनिल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर गुमराही साबित हो चुकी है, जिन्होंने शैतानों को अल्लाह को छोड़कर दोस्त बनाया। पहली आयत, दूसरी आयत में जो आया था ना कि दूसरों को दोस्त न बनाओ, अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बनाया है। व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, खुद समझते हैं कि हम हिदायत पर हैं। यानी देखें ना, शैतान बताएगा तो नहीं कि मैं शैतान हूँ। वो जैसे आदम अलैहिस्सलाम को उसने ये बताया मैं शैतान हूँ, तो वो तो आके आपको कोई नीली रोशनी दिखाएगा, आप कहेंगे कि मैं अगली मंजिल पे पहुंच गया हूँ, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया है। पीली दिखाएगा, आप कहेंगे मैं एक दर्जा और चढ़ गया हूँ। उसके बाद पता नहीं ख्वाब में आके क्या खूबसूरत मंजर दिखाएगा, आपको लगेगा पता नहीं कोई फरिश्तों के महल में पहुंच गया हूँ। तो ये जो ख्वाबों वाली दुनिया है, इसका क्या पता कि इसके पीछे तार कौन हिला रहा है। तो हमारा तो सारा इल्मी विरसा माशाल्लाह जो भी दीनी है, वो ये मस्जिद किस क्यों बनाई, फलाने बुजुर्ग ने ख्वाब देखा था, ये क्या हुआ, ये फलाने ने ख्वाब देखा था, ये काम क्यों शुरू किया, ये उसने ख्वाब देखा था। भाई किताब बेचारी इधर धरी रह गई, धंधा तो सारा ख्वाबों पे चल पड़ा। तो वो समझ ही रहे हो, हमें हिदायत मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है। ये छिटांकी पाओ पाओ, तोला तोला, माशा माशा, हर एक के अंदर माशाअल्लाह, ये जो है ना, ये जहर है। अलबत्ता पूरा टोकरा सारे का सारा वो गुलाम अहमद कादियानी के सर पे, थोड़ा थोड़ा हर तरफ है। तो ये कोई हिदायत नहीं है, ये मिस्ट्री के पीछे हिदायत नहीं छुपी हुई है। हिदायत क्लियरिटी का नाम है, साफ आपको नजर आ रहा, और वो क्लियरिटी किताब मुबीन देती है जो खुद क्लियर है। तो इसकी तरफ उधर कोई हिदायत नहीं है। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें आराश दिया, जीनत दी है, हर नमाज के वक्त उसे इख्तियार करो। गंदे मंदे होकर अल्लाह के दरबार में पेश न हो, नहा धो के वुजू करके कपड़े अच्छे पहन के अल्लाह के हाँ आओ। वकुलू वशरबू, खाओ और पियो। ये क्या है कि जनाब आप जो मैं गोश्त नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैं फलाना नहीं, मैं भूखा रहूँगा,
کہ بالکل جناب اس سے کوئی نہ کوئی جب ظاہر بھوک لگے گی تو کچھ نہ کچھ پتہ نہیں دماغ کی طرف سے تبخیر کا عمل ہوگا تو کیا سے کیا باتیں ذہن میں آئیں گی، لگے گا کہ پتہ نہیں کوئی معرفت حاصل ہو رہی ہے. تو یہ کچھ نہیں ہے. کھاؤ پیو، کلو واشربو ولا تسرفو. البتہ یہ نہیں کہ بھائی 4 وقت کا کھانا ایک ہی دفعہ کھا لو آگے چڑھ گیا ہے تو یہ کام زیادتی نہ کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو میدے کے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھو، ایک پانی کے لیے رکھو، ایک کا کھانا کھاؤ. تو ویسے میدا ہوتا کتنا ہے؟ یہ کوئی ڈرم تو ہوتا نہیں، یہ ہر انسان کے 2 جو ہاتھ ہیں نا ان کے برابر ہوتا ہے، بس اتنا سارا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں 3 مٹتی ہیں تو 3 مٹا دیں بے شک، مجھے تو نہیں لگتا کہ 3 مٹیں گی. تو وہ کریں گے تو پھر آگے جو بھی ڈسٹربنس ہوگی طبی نقصانات بھی ہیں نا اس کے. یہ جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، یہ کیا کچھ اتنا آ گیا، وہ فٹ بال بن گیا تو اس نے ڈریننگ کرنا ہے، وہ جا کے آنتوں میں خرابیاں پیدا کرے گا، ادھر سے گیسٹرک اور پھر ساری تیزابیت، یہ اس کے نتائج ہیں ماشاءاللہ. ولا تسرفوا، حد سے نہ نکلو، انہ لا یحب المسرفین، وہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے نبی کہہ دیجئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور جو رزق کی پاکیزہ چیزیں، جو پاکیزہ رزق ہے کس نے حرام کیا ہے؟ اب یہ کس چیز کی نفی ہو رہی ہے؟ وہ جو لوگ جو گندے مندے رہتے ہیں، جو صاف ستھرے نہیں رہتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا زیادہ نیکی کا مقام ہے. تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مہر کی تہیں چڑھی رہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. کہہ دیجئے کہ یہ اہل ایمان ہی کی برکت سے دنیا میں یہ ساری چیزیں میسر ہیں، اور آخرت میں تو صرف انہی کے لیے خاص ہوں گی. کافروں کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملے گا. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اس طرح ہم تفصیل سے ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش. کہہ دیجئے میرے رب نے بے حیائی کی باتیں حرام کی ہیں، کام ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہوں یا چھپے ہوں، خیالات کی صورت میں ہوں، آئیڈیاز کی صورت میں ہوں، ارادوں کی صورت میں ہوں، یا فی الواقع جو کیے جا رہے ہوں وہ حرام کیے ہیں. والبغی، اور زیادتی کرنا بغیر حق، نہ حق. وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اور یہ حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ حرام کیا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں جڑو جو تم نہیں جانتے. ولکل امۃ اجل، ہر امت کی ایک اجل ہے. مطلب جیسے انسان کی اجل ہے، ہم نے سورہ نام میں پڑھا تھا، کائنات کی اجل ہے، تو یہاں بتایا امت کی بھی اجل ہے. کبھی باریاں بدلتی ہیں، کبھی کسی کی باری ہوتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے امت، اس کی جگہ لینے دوسری امت آتی ہے. فاذا جاء اجلهم، جب اس قوم کی اجل آ جاتی ہے، اس کے عروج کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، تو نہ وہ ایک پل آگے بڑھ سکتی ہے نہ ایک پل پیچھے سرک سکتی ہے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم، جب آئیں تمہارے پاس میرے رسول جو تم ہی میں سے ہیں، منکم آئیں گے، آسمان سے نہیں اتریں گے، تم ہی میں سے ہوں گے. یقصون علیکم آیاتی، اور تمہیں پڑھ کر سنائیں میری آیات. فمن اتقی، تو جو کوئی ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اور نیکی کے راستے پر آئے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا، انہا، ان سے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلایا. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، ان کو کتاب میں سے ان کا حصہ ملے گا جو بھی ان کی عمر ہے. اگر کوئی فرد ہے تو جو بھی 60-70 سال، اور اگر کوئی قوم ہے تو جو 100 سال 200 سال یا 1000 سال، وہ اس میعاد کو پہنچیں گے. حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے آئیں گے ایلچی، ہمارے فرستادے یعنی فرشتے، جان قبض کرنے والے، یتوفونہم، ان کو وفات دیں گے، یعنی انہیں پورا وصول کر لیں گے. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو ساتھ ہی ان کو جو ہے نا طنز کرنے کے لیے کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارا کرتے تھے بچانے کے لیے، وہ کہاں ہیں؟ آئیں نا، آج تمہیں بچائیں، کدھر ہیں وہ؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے. وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنے اوپر خود ہی گواہ بنیں گے کہ وہ کافر تھے، ناشکر تھے اور انکار کرنے والے تھے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، اب یہ دیکھیے ایک دم منظر تبدیل کیا ہے. بات شروع ایسے ہوئی جیسے وہ جب موت کے وقت فرشتہ آتے ہیں وہاں سے شروع کی، لیکن اب یہ جو آگے منظر آ گیا ہے یہ آخرت کا منظر ہے، یعنی وہی لوگ جب اب آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے. تو یہ حساب ہوا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، چلے حساب دیں. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تو کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان قوموں میں کہ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں کی، یعنی آگ میں، سب ادھر جاؤ، اب تمہاری بھی ادھر ہی باری لگی ہے. کلما دخلت امۃ، پہلے سے وہاں لوگ موجود ہیں، یہ جو نئی پارٹی جائے گی نیا جتھا اندر داخل ہونے کے لیے، لعنت اختہا، تو وہ دوسری امت کو لعنت کرے گی. اب یہ لعنت کا مطلب یہ بھی ہے کہ پہلے ہی جگہ تنگ ہے، یہ اور چلے آ رہے ہیں، دیکھو جی یہاں دیکھتے نہیں کہ گنجائش نہیں ہے تو تسی بھی آؤ. تو اس طرح یعنی کہ ان کو تکلیف ہوگی کہ یہ نئے کیوں آ گئے. حتیٰ اذا ادارکوا فیہا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں جمع ہو چکے ہوں گے، جمیعاً سب سارے آخر تک والے، قیامت کے دن صبح تک کے لیے. قالت اخراہم، جو سب سے آخر والی ہوگی وہ کہے گی اولاہم، اپنے سے پہلے والوں کے بارے میں، ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا، اے اللہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. یہ ان کے ڈالی ہوئی رسمیں تھیں جن پر ہم چلے تھے، ریتیں تھیں، انہوں نے رواج تھے جو انہوں نے شروع کیے تھے، ہم ان پر چلے تو ان کو دگنا عذاب دے من النار، آگ میں سے. قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے. اصل میں یہ تو دو عمل ہے نا، انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تو چلے ان کے لیے دگنا ہو گیا، ایک اپنا تو ایک تمہیں گمراہ کرنے کا، تو تم نے آگے کوئی خیر پھیلایا ہے، تم بھی تو آگے گمراہ کر کے آئے ہو، تو سب کے لیے دگنا ہے. لکل ضعف ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے. وقالت اولاہم، اس سے حوصلہ ملے گا وہ پہلے والوں کو، وہ پہلے والے تو ڈرے سے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2 جرم ہم پر لگ گئے، اب اس سے حوصلہ پا کے وہ پہلے والے کہیں گے
वकालत उलाहुम लिउखरा, बाद वालों से कहेंगे फमा काना लकुम अलैना मिन फज़लिन, हमारे ऊपर तुम्हें कोई फजीलत हासिल नहीं है, फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकसिबून, चखो मज़ा अज़ाब का आपने उस जो भी तुम कमाई किया करते थे। इसमें इशारा किया गया कि ये दुनिया में भी लड़ते रहे आपस में और वहाँ दोज़ख में भी घुस के लड़ते ही रहेंगे, इनको जो है ना वहाँ भी चैन, ये अलग से एक मुसीबत होगी। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी आयत को झुटलाया, वस्तकबरू, अल्लाह की आयत को झुटलाया और हमारी आयत को झुटलाया, वस्तकबरू अनहा, और उनके मुकाबले में घमंड किया, तकब्बुर किया, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। इससे अंदाजा होता है कि ये किस्सा ज़मीन बरसरे ज़मीन चुकता किया जाएगा और जो जन्नत है वो आसमानों में होगी, इनको जन्नत की तरफ नहीं ले जाया जाएगा। वला यदखुलूनल जन्नह, ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यलजल जमलु फी सम्मिल खियात, जब तक के सुई के नाके से ऊँट न गुजर जाए। सुई का नाका जिससे धागा भी कमजोर नजर का आदमी नहीं गुजार सकता, उससे ऊँट गुजरा तो ये भी चले जाएंगे, यानी ये हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं तालीक बिल महाल, किसी शय को जोड़ देना एक ऐसी शय के साथ कि जो मुमकिन ही ना हो, न नौ मन कभी तेल हो, न राजा साहिबा कभी नाचें, तो ये चीज़ होती है कि जिसे यहाँ पे कहा गया वह कज़ालिक नज्ज़िल मुजरिमीन, इस तरह मुजरिमों को हम बदला देते हैं। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन, उनके लिए दोज़ख ही बिछुना होगा, व मिन फौक़िहिम गवाश, और ओढ़ना भी दोज़ख ही है। वह कज़ालिक नज्ज़िल ज़ालिमीन, और इस तरह हम ज़ालिमों को बदला देते हैं। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए जिन्होंने नेक अमाल किए, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी जान को तकलीफ नहीं देते, यानी बाज़ पुरुष नहीं करते मगर उसकी जो भी वुसअत, जो उसकी कैपेबिलिटी है उतना ही। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ये जन्नत वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा वहाँ रहेंगे। व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, कंट्रास्ट, उधर लड़ाइयाँ झगड़े, और इधर क्या, उनके दिलों में एक दूसरे से अगर कोई थोड़ी बहुत कुदूरत थी, खफगी थी, नाराजगी थी, वो हम साफ कर देंगे, खींच के निकाल देंगे। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, और वो होंगे उन बागात में कि जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, वहाँ पहुँच के वो ये कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें यहाँ पहुँचा दिया। वमा कुन्ना लिनहतदी, हम यहाँ हरगिज़ नहीं पहुँच सकते थे, लौला अन हदाना अल्लाह, अगर अल्लाह हमें यहाँ ना पहुँचाता। ये उसका फजल है, उसकी मेहरबानी है। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, बेशक हमारे पास हमारे रब के रसूल हक़ लेके आए थे। वनूदू, और आवाज़ आएगी, अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, यानी वो कहेंगे अल्लाह ने पहुँचाया, अल्लाह मुड़ के कहेगा ये तुम्हारे आमाल हैं, मेहनत हैं, तुम्हारी इस्तिकामत है, सब्र है, ईज़ा पे जो झेली है, उसके नतीजा है कि इस जन्नत के तुम वारिस बनाए गए हो। नादा व नादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, ये कोई अब कैसे रब्ता होगा, आजकल जैसे सैटेलाइट के जरिए से हो जाता है तो वहाँ तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अब दोषियों और जन्नतियों की आपस में कुछ गुफ्तगू है जिसको नकल किया गया। व नादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, अब ज़हन में रखें जन्नत में कमज़ोर लोग गए और वो जो मलाउल कौम में बड़े बड़े सरदार हो तो उधर गए, तो अब ये इनके दिल जले हुए हैं, तो ये उनको पुकार रहे हैं दोज़ख वालों को, अन कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, दुनिया में जो अल्लाह ने अपने रसूलों के जरिए से हमसे वादा किया था वो तो हमने देख लिया कि सच्चा निकला, यानी हमें जन्नत मिल गई। फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, जो अल्लाह ने तुमसे वादा किया था इनकार करने की सूरत में दोज़ख में जाने का, तो क्या वो सच्चा हुआ या नहीं हुआ? कालू नाम, वो कहेंगे हाँ हो गया। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, तो फिर एक पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा, कोई हातिफ़ गैबी, कोई फरिश्ता, अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, के ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है, फिटकार है। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो ज़ालिम के जो अल्लाह की राह से रुके या रोकते रहे, व यबगूनहा इवजा, और उसमें कजी ढूंढते रहे, यानी वो ऐब तलाश करते रहे दीन के अंदर, ये खराबी है, ये खराबी है, ये क्यों है, ऐसा क्यों हो गया है। वहुम बिल आखिरति काफ़िरून, और आखिरत का वो इनकार करने वाले हैं। व बैनहुमा हिजाबुन, और ये जो दोनों जन्नती और दोज़खी हैं जिनकी गुफ्तगू हो रही थी, इनके दरमियान एक आड़ होगी, एक दीवार समझ लें, जैसे कले की दीवार होती है उस तरह होगा। वहाँ आराफ रिजालुन, कुछ लोग होंगे उसके जो दीवार के ऊपर, वहाँ पे जो जैसे वो बुर्जियाँ सी बनी होती हैं चलने की जगह भी, उधर कुछ लोग खड़े होंगे। यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, सबको जानते होंगे उनके चेहरों से, उस तरफ वालों को भी इस तरफ वालों को भी, क्यों कुछ इसीलिए तो दरमियान में ना ताल्लुकात दोनों तरफ थे, तो अब वो अटके हुए हैं दरमियान में, ना अभी दोज़ख में गए ना जन्नत में गए, कुछ नेकियां भी थी कुछ बुराइयां भी, लटक गए। व नादाउ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम, वो पुकारेंगे जन्नत वालों को, वो जो अस्हाब आराफ हैं, क्या आप पर सलाम हो। लम यदखुलूहा, अभी खुद जन्नत में दाखिल नहीं हुए, वहुम यतमाऊन, तमा है कि हम भी दाखिल हो जाएं। व इज़ा सुरिफत अबसारुहुम, जब उनकी आंखें फेरी जाएंगी, तिलका अस्हाबिन नार, वो आग वालों की तरफ, कालू रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, वो कहेंगे हमारे रब इन जालिमों के साथ हमें दाखिल न कर देना। वह नादा अस्हाबुल आराफ है, अब उन्हें भी कुछ ख्याल आएगा पुरानी बातों का, तो वो वहाँ से पुकारेंगे रिजालन, उन लोगों को जिनको वो यारिफूनहुम बिसीमाहुम, जिनको उनके चेहरों से पहचानते होंगे, ओ फलाने, उनको बुलाएगा, यानी दोज़खियों में से जो होंगे। कालू मा अगना अन्कुम जमउकुम, तुम्हारी जो जमीयत थी, तुम्हारा जो जत्था था, तुम्हारी जो वो दस्ता था, कुछ तुम्हारे काम ना आया। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जिन चीज़ों पर तुम काम तकब्बुर किया करते थे, जो हसब नसब, अपना जो भी तुम्हारा दुनिया के जो कारोबार थे जिन पर तुम्हें बड़ा घमंड था, कुछ काम ना आया। हाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, ये वो लोग हैं यानी जन्नत वाले जिनके बारे में दुनिया में तुम कसमें खाया करते थे, इन्हें तो कोई रहमत मिल नहीं सकती। देखो ना, इनके पाँव में जूती नहीं है, गरीब गुरबा हैं, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, जूतियाँ चढ़खाते फिरते हैं, अल्लाह ने इन्हें ये नहीं दिया तो जन्नत देगा, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, कसमें खाया करते थे तुम। उदखुलुल जन्नता, इनको तो कह दिया गया जन्नत चलो, ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, ना तुम्हारे लिए खौफ है ना तुम गमगीन होगे। व नादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नह, तो पुकारेंगे आग वाले जन्नत वालों को, आप अभी राब्ता बरकरार बाहर है तो उन्हें पुकारेंगे जन्नत वालों को। पहले तो जन्नत वालों ने पूछा था ना कि वादा सच्चा निकला है नहीं, अब दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकार रहे हैं कि बात सुनिए, अन अफीज़ू अलैना मिनल मा, बहुत प्यासे हैं, आपको बहुत खाने पीने को मिल रहा है, दुनिया में भी आप सखी थे, थोड़ा सा बचा खुचा पानी हमारी तरफ बहा दीजिए। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह हो, और जो कुछ भी अल्लाह आपको रिस्क दे रहा है खाने पीने को, उसमें से कुछ दे दीजिए। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, वो ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं देते,
وہ کہیں گے کہ اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا، ہم کیا کریں، ہم تو دنیا میں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے حرام کر دیا، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں پھانس لیا ہے، دھوکہ دیا ہے، پھانس لیا ہے، یعنی اپنی جیسے ہوتا ہے نا زلف گرا گیر کا اسیر کر لینا، تو دنیا بھی تو اپنا اسیر بنا لیتی ہے کہ یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہ کرنا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو وہ اس دنیا میں پھنس کے ہمیں بھولے رہے، آج ہم نے انہیں بلا دیا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے آج کے اس دن کی وہ ملاقات بھولے ہوئے تھے۔ یہ اصل میں اللہ رحمان ہے نا، تو کیوں بھول گیا؟ اس لیے کہ تم بھولے ہوئے تھے، اس لیے اس نے تمہیں بلا دیا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مین میخ نکالتے تھے، جھگڑتے تھے، تو اسی طرح ہم نے ان کو بلا دیا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، تو یہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہے، ہم نے ان کے پاس ایک کتاب پہنچائی تھی، اپنا پیغام پہنچایا تھا انہیں۔ فصلناہ علی علم، جس کو ہم نے اپنی سمجھ سے، اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے ساری بات رکھی تھی، یعنی وہ کوئی تک بازی نہیں تھی بلکہ علم کی بنیاد پر بات تھی۔ ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، وہ ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ هل ينظرون الا تاویلہ، تو یہ کس بات، اب خطاب آ گیا، جو یعنی یہ ساری بات آگے کی اور پیچھے کی سنا کر اب براہ راست منکرین جو مشرکین مکہ ان سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ کس بات کے منتظر ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اللہ فرما رہا ہے یہ ہو جائے، اس کی تعمیل کا، یعنی اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یوم یاتی تعمیلہ، جس دن یہ انجام ظاہر ہوگا، اس کی حقیقت کھلے گی۔ یقول الذین نسوہ من قبل، جو لوگ اس کو بھولے بیٹھے ہوں گے اس سے پہلے، وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول جو آئے تھے وہ سچے نکلے، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں، فیشفعوا لنا، جو ہمارے لیے سفارش کریں، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں دنیا میں تو پھر ہم وہ اعمال نہ کریں جو ہم کیا کرتے تھے، شرارتیں نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ قد خسروا انفسهم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو وہ افترا کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گیا، ان کے ہاتھ سے بہہ گیا، چھوٹ گیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔